ma'am. More than money, it is about comfort. She was in depression because of that ulcer, क्योंकि उन्होंने गूगल पे सर्च किया और सबसे पहली चीज आई कैंसर. Coming to my next, and it is a very prominent asked question from my viewers. Can AI replace you? It cannot. जो भी पेशेंट वॉक इन आता है तो वो मुझे बोलता है कि मेरे पास सीरी है, मेरे पास एलेक्सा है. ओरल कैंसर बहुत ही इजी चीज है मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग. Time you can say that a person should visit a dentist or a maxillofacial surgeon in a year. It's a very common question asked by the patients. So with that sir, मुझे कई बार मतलब viewers ने ये भी पूछा है. Yeah, as we already discussed, implant is always any day a better choice if it is possible. Okay. जैसे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एक्सेट्रा, जैसे यहाँ पर जो जॉइंट आता है that is responsible for our chewing. In bridge what we do, we usually cut the adjacent tooth, then take the measurements and all those things, and then we place a bridge. It's the only type of cancer in the body which can be prevented. Oh. Yeah. Welcome to Let's Talk Life, where two doctors sit down to decode the mind, the face, and everything in between for you. I am Dr. Chitra Shukla, a clinical psychologist, and every week on this podcast, we talk about the stories behind the symptoms, the emotions behind the diagnosis, and the science behind healing. Today, I am excited to be joined by someone who literally rebuilds confidence, one face at a time. Today's episode features a true pillar in Baroda's medical community, Dr. Dishant Shah, a renowned oral and maxillofacial surgeon and the expert behind the Swastik Dental Clinic. With over 10 years of experience, he has performed more than 10,000 surgeries ranging from wisdom tooths, removals and dental implants to maxillofacial trauma, jaw cysts, tumors and advanced facial aesthetics. His expertise doesn't stop at the clinic. Dr. Shah has 17 national and international publications to his name and is a sought-after speaker at CDE programs, conferences and community awareness events, especially on oral cancers. He's a man who fixes mouths, faces confidence and transforms lives. We are honored to have him with us today. Welcome, Dr. Dishant. So, stay tuned till the end, for you might change the way you think about your smile, scars and your story. Thank you, Dr. Chitra, for the invitation. Lovely. Thank you, sir, for having today. You work with bones and I work on beliefs. So Yes. my first question, I'm going to shoot it as a star. Right. When some patients comes with you with a facial surgery, completely changes someone's confidence. What do you have to say on that? Yeah, recently I had a case in which we had a 50-year-old male patient whose mouth was completely closed like this since last around 30 years because of the condition known as oral submucous fibrosis. In that condition, usually because of the gutka and tobacco chewing, patient has mouth is completely closed, so he's not able to eat since last 20 to 30 years. Can you imagine that he's just on the liquids since last 20 years? Can you stay on liquids for even 2 to 3 days? I don't think so. Anyone can stay like that. Agreed. So he came to us for the surgery of the oral submucous fibrosis. We performed the surgery, and within 5 to 7 days, his mouth opening was like 2 fingers, like this. Okay. So now his smile, his confidence, and his ability to chew food, everything has changed substantially. So that's what a maxillofacial surgeon can do to a patient's life. Stating that, sir, again, the second, since you said about maxillofacial surgery and surgeon, my audience would like to understand what is the difference between a maxillofacial surgeon and a general dentist. Yeah, then I would like to say the difference is same as like the difference between an MBBS and a general surgeon. Okay. Like a general surgeon has a specialty in the surgeries, but most of the surgeries they perform are below neck. Okay. And maxillofacial surgery, all surgeons perform surgeries which are above neck. Normal general dentist performs procedures like the root canal treatments or the gum surgeries and related things. Whereas maxillofacial surgeon performs procedures like surgeries related to teeth, face and jaws, all the surgeries. Okay. You know that we have come from the monkeys, right? Yes. So generation by generation, because of this junk food and everything, our jaw size is getting smaller. Yes. So wisdom tooth के लिए वहाँ पर जगह ही नहीं बचता है. Yes. So in most of the patients, like I can tell you that almost 80 to 90% of the people in today's generation don't have the space for the wisdom tooth.
સો ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને કે ડાપણની દાઢ, બટ એકચ્યુઅલી there is no wisdom in keeping the wisdom tooth. So એ એજ ઉપર wisdom tooth કાઢવું જરૂરી છે. કઢાવું નહીં તો એટલીસ્ટ उसका कंसल्टेशन लेना जरूरी है with a maxillofacial surgeon whether to keep it or to go for the removal of. We are doing like dental implant surgeries. You know that कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे टीथ नहीं होते हैं, and because of the lack of teeth they are not able to chew their favorite food. And we as maxillofacial surgeons perform dental implant surgeries in those patients, and because of that they are able to chew the proper food. So one should go for the bridges or one should go for the dental implants? Yeah, it's a very common question asked by the patients. So dental implants any day is a better choice from bridge, because in bridge what we do, we usually cut the adjacent tooth, then take the measurements and all those things, and then we place a bridge. Okay. जबकि इम्प्लांट में हम क्या करते हैं कि आजू बाजू के जो हेल्दी टीथ है, हाँ. उसको हम कुछ डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं. Yeah. इट्स लाइक आपके घर में रिनोवेशन चल रहा है और आपके दो पड़ोसियों को भी आप परेशान कर रहे हो अननेसेसरीली, राइट? सो इट इज लाइक दैट. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इम्प्लांट में, आपके घर में रिनोवेशन है, आप अपना ही काम देखो, अपना जो भी प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम है, आजू बाजू के लोगों को आप परेशान नहीं कर रहे हो. So you can say that, yeah. Yes. So in implant we are doing exactly the same. जो टूथ मिसिंग है उसी टूथ को हम रिप्लेस करते हैं, आजू बाजू के टूथ को कोई परेशानी नहीं होती है. सो इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन एंड अ बेटर सॉल्यूशन. और जो बड़े एज वाले ओल्ड एज के लोग हैं, मोर देन 40 50 60 इयर्स के एज है, जिनके सारे दांत मिसिंग है, तो उनके अंदर क्या है कि फुल माउथ रिहेबिलिटेशन में दो ही ऑप्शंस होते हैं. इधर वी कैन गो फॉर रिमूवेबल डेंचर्स लाइक चोखठा, or we can go for the fixed prosthesis like implants. So in most of the patients we prefer to go for the dental implants only for the fixed prosthesis part. Yes, and said that about the fixed prosthetic part. आजकल सर aligners या फिर braces. Yeah. So you know there is trend. पहले जब मैं बड़ी हो रही थी या फिर शायद आप बड़े हो रहे थे, तभी हम लोग ने braces ही सुना था. That orthodontics एक field है. Yes. After you know सब BDS के बाद. Right. तो उसमें मैंने देखा है कि लोगों का नाउ द डॉक्टर्स आर आल्सो प्रमोटिंग दैट के कम पैसे में जाना है तो गो फॉर ब्रेसेस, और ज्यादा पैसे है तो गो फॉर अलाइनर. सो कुड यू ब्रेक द मिथ इन बिटवीन दैट, व्हाट एग्जैक्टली इज अलाइनर एंड? Yes ma'am, more than money it is about comfort. The comfort which aligners provide is very important. अभी आज के जनरेशन में आप देखें तो कौन सा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बीटेक स्टूडेंट आज वो क्लिप्स लगाकर कॉलेज जाना चाहेगा, राइट? इन आवर टाइम इट वाज ओके टू गो विद द क्लिप्स एंड गो टू द कॉलेज. आई रिमेंबर वेरी क्लियरली वो रबर्स येलो हो जाते थे यार. इट लुक वेरी बैड व्हेन ही यूज्ड टू स्माइल. आई यूज्ड टू कीप माय lips literally jammed locked. So apart from the unaesthetic appearance, it also gives you bad smell sometimes. Yes, so braces it good is not bad thing. It has also delivered results since last so many years. But as we know that technology is evolving in every field. Yes, it is advancing. हर फील्ड में नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं. जैसे IT में तो AI बूम आया है पूरा. Yes. सेम तरीके से डेंटल फील्ड में भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हैं, जैसे इंट्राओरल स्कैनिंग है, डिजिटल प्लानिंग है. अभी उसकी मदद से हम नए आए हैं अलाइनर्स. सो अलाइनर से आपका द वे ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीटली चेंज. उसमें क्या होता है कि ब्रेसिस में देयर आर सम लिमिटेशंस. आई वुड नॉट से कि पूरी तरीके से लिमिटेशंस आ जाते हैं, बट सम लिमिटेशंस, जैसे कि पानी पूरी जैसे कड़क चीज होता है, चना वगैरह होता है, वो कड़क खाने में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहता है. आई रिमेम्बर द वायर ब्रेक हो जाते थे. वो सिंग मेरी बीच में ना एक दो बार सिंग घुस गई थी तो पूरा वायर हैड कम डाउन एंड आई हैड टू रन ऑल द वे टू माय डेंटिस्ट. आई वाज इन गुजरात एंड आई हैड कम फॉर अ मैरिज आउट हियर एंड आई हैड टू गो ऑल द वे द same day I had to catch a train. Right. And I had to go to Maharashtra because my doctor was there. Right. मेरे में इतनी common sense भी नहीं थी कि you can go visit any doctor. Right. And honestly sir, तब भी awareness की problem थी. आज भी awareness की problem है. So ऐसी जब problem आती है कि can we go to any dentist for immediate purposes like this? 100% you can go to any dentist nearby. Like आपने जो बताया, this is very common problem कि ब्रेसिस अगर किसी ने करवाया है, उसका ब्रैकेट टूट गया या वायर निकल गया, इट्स वेरी कॉमन. तो उसमें लोग ढूंढते रहते हैं कि मेरे डेंटिस्ट के पास मैं कैसे जा पाऊंगा. बट यू कैन गो टू एनी नियर बाय ऑर्थोडोंटिस्ट और अ डेंटिस्ट एंड गेट इट फिक्स्ड. दैट इज ओके. अलाइनर का मेन बेनिफिट यही है मैडम. उसमें क्या होता है कि वी आर प्रोवाइडिंग अलाइनर्स टू लॉट ऑफ एनआरआई पेशेंट्स. सो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एनआरआई पेशेंट्स एंड इवन फॉरेनर्स, कई सारे फॉरेनर्स यहाँ, क्योंकि वहां पर यू नो दैट इट्स वेरी कॉस्टली टू गो फॉर द सेम ट्रीटमेंट. They don't even get appointments. Yes.
That is the worst thing, because I suffered while I had gone to a small trip with my family, and I had this because of the water or because of something that I ate, I really had a very bad stomach ache, and for that reason also I could not take an appointment. Yeah, so हमारे वहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट्स, स्पेशली हमारा डेंटल और फेस रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स है, आई कैन अश्योर यू इट्स द बेस्ट इन वर्ल्ड. आपके फील्ड का भी आप बता सकते हैं कि इट्स द बेस्ट इन वर्ल्ड. Yes, I agree, sir. Pre-op, I have seen that, जब भी एक आपके पास TMJ जॉइंट का या सम पेशेंट आते हैं who's in extreme pain, लेकिन पेन पहले बहुत टाइम तक सहन करता है. क्या वो जरूरी है कि उसको सहन करना चाहिए यार? what is exactly when they should come? वो क्लेंचिंग आवाज, वो मैंडिबल एंड मैक्सिबल, उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है. What is the stigma? आप सिर्फ ब्रेक कर दो. Seriously, people, my teenagers really want to understand कि कब how they can also just walk in. Right. उसमें पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं है. Yes. And what is the time duration जब ये सारे क्लेंचिंग प्रॉब्लम्स होते हैं? यस, एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका. एक्चुअली अब तक क्या था कि 40s 50s के बाद में ये सारे इश्यूज शुरू होते थे. अभी आपको पता है आपका ओपीडी भी बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस रिलेटेड रीजंस, राइट? एंड मोस्टली इन द टीनेजर्स. So now since last 5-6 years I have seen this patients कि जहाँ पर 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का लड़का या लड़की आके मुझे कह रहे कि यहाँ पे कटाक कटाक आवाज आते हैं कुछ भी खाते हैं तो. So there is silent epidemic of this clenching and stress which is going on. आपका बहुत important role है उसके अंदर to counter this. So clenching और जो कटाक कटाक आवाज आता है, that is basically ये आवाज जो है it is because of the problems in the temporomandibular joint. जैसे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एटसेट्रा. ऐसे यहाँ पर जो जॉइंट आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर च्यूइंग. अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है सो इट विल लीड टू दिस कटाक कटाक आवाज. एंड if you ignore that at this stage, then it can lead to many other problems like mouth opening or reduce and many severe pain, swelling, all these things will be there. So I would advise कि अगर आपको ऐसा कुछ भी issue है, you should consult your maxillofacial surgeon as soon as possible. Agreed, sir. Said that because I have a patient of mine who's continuously complaining कि वो कटाक आवाज आता है. Before that, I giving her a suggestion that you should see a maxillofacial surgeon. She said that because of this pain, उसका एग्रेशन लेवल बढ़ गया था. And that she had मतलब she was all this time she was going to a general physician. Yes. And general physician will just give you some antibiotics ताकि वो आपका थोड़ा pain release हो जाए. But they actually did not know that like temporal region को अलग से assist किया जा सकता है. Right. So ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैडम. उसमें क्या होता है कि लोग, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाके आते हैं. एक्चुअली डॉक्टर का वो स्पेशलिटी नहीं होता है और पेशेंट को पता नहीं होता कि which specialist I should go to. So वो मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको फेस रिलेटेड मतलब कि जॉइंट और मसल्स रिलेटेड कोई भी इश्यू है, you should go to a maxillofacial surgeon. Yes. And maxillofacial surgeon previously they used to be less in number, but thankfully thanks to our government we have many maxillofacial surgeons in the city right now, so you can go to consult any maxillofacial surgeon. सर, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, मैंने अपनी ऑडियंस को बताया कि हाउ यू हैव बीन अ प्रोमिनेंट स्पीकर फॉर ओरल कैंसर्स, तो उस पे थोड़ा सा लाइट डालिए, बट बहुत ही सिंपल तरीके से. ओरल कैंसर बहुत ही इजी चीज है मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज इट्स द ओनली टाइप ऑफ कैंसर इन द बॉडी विच कैन बी प्रिवेंटेड. ओह या, सो 95% केसेस ऐसे हैं ओरल कैंसर के विच कैन बी इजीली प्रिवेंटेड. ओके, क्या नहीं करना है, ये अजय देवगन और अक्षय कुमार का नहीं सुनना है. बट व्हाट आर द, अगर किसी को हो गया है तो व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स? या मोस्ट कॉमन सिम्टम इज नॉन हीलिंग अल्सर. ओके, नॉन हीलिंग अल्सर होता है 15-20 दिन के तक. हो सकता है कि अगर यंग एज में किसी को अल्सर हुआ, इट्स वेरी कॉमन स्ट्रेस की वजह से. जैसे स्ट्रेस की बात की हमने, इट्स वेरी कॉमन. एग्जाम स्ट्रेस है, love problems hai, that all things are very common nowadays. These days kids forget to drink water also. Yeah. Seriously, that is my main concern. Right. पानी नहीं पीते पूरा दिन and pimples से पूरा भर जाते हैं. And of course, even orally also they are having. But in my opinion, before doing all those things, you should visit a doctor. Like you can visit a general dentist or a maxillofacial surgeon and get yourself evaluated. Okay. Like various kinds of ulcers are there. तो aphthous ulcer है, chronic aphthous ulcers होते हैं जो recurrent होता है, बहुत बार होता ही रहता है. तो is it just because of stress related or any other serious condition which is there underlying? Okay.
तो वो एक रूल आउट करने के लिए आपको अपने डेंटिस्ट या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास एक बार विजिट कर लेना ही चाहिए। एंड सर दैट क्या उसको से बार बार हो रहा है अल्सर, और हम लोग ने ओरल कैंसर की बात करी, तो क्या आप उसको बायोप्सी के लिए भेजते हो? नो, वी इवैल्यूएट इट फर्स्ट क्लिनिकली। अगर जरूरत है देन ओनली वी एडवाइस फॉर द बायोप्सी। अदरवाइज वी कीप ऑन फॉलो अप, 7 to 15 डेज फॉलो अप पे रखते हैं, वेरियस मेडिकेशंस स्टार्ट एंड बाद में देखते हैं कि कैसा उसका रिजल्ट। और ओरल कैंसर में मैं और भी ऐड करना चाहूंगा, 2-3 उसके मेन रीजन है। पहला है कि जैसे हमने बताया जुबा केसरी, दूसरा एक चीज है कि सुपारी इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ओरल कैंसर। सो कई सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि टोबैको से ही कैंसर होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। सुपारी इज द मेन कल्प्रिट। सो सुपारी, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीजें मेन कल्प्रिट है ओरल कैंसर के लिए। दूसरा, जैसे ओरल हाइजीन को आप इग्नोर कर रहे हो, अग्रीड, एग्जाम है, ये है, वो सब चीजों करके ब्रश नहीं करते हैं, ओरल हाइजीन खराब हो गई, ये सारी चीजें होती है जिससे भी आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा मेन रीजन है टेढ़े मेढ़े दांत। टेढ़े मेढ़े दांत की वजह से क्या होता है कि जैसे टंग में ऐसे परेशान हो गया, किसी पे गुस्सा आ गया, ऐसे करके टंग बाइट कर लिया, क्रोनिक टंग बाइट ऐसे होता रहता हो तो सालों के बाद दैट कैन आल्सो कन्वर्ट टू दिस 3 थिंग्स व्हिच आर मेन कल्प्रिट्स फॉर ओरल कैंसर एंड ऑल आर प्रिवेंटेबल। सो इसीलिए मैं ओरल कैंसर के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड के ओरल हाइजीन के लिए ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूसरा कुछ करे ना करे वो आपकी मर्जी है, बट ब्रशिंग इज मैंडेटरी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 2 टाइम्स ब्रशिंग, सुबह में करिए और रात को करिए सोने से। वो भी उसमें क्या होता है कि उठने के बाद तुरंत ही जो व्यक्ति होता है उसको रात को किसी पे बीवी हस्बैंड से झगड़ा हो गया, ऐसा इतना गुस्सा होता है, ऐसे 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 करके जोर जोर से सबसे पहले ब्रश के ऊपर गुस्सा निकलता है। उससे क्या होता है कि दांत आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घिस जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हम 40-50 इयर्स के एज के लोगों के अंदर जो दिख रहे हैं वो यही है कि पूरे दांत उनके घिसे हुए लेकर हमारे पास आते हैं बिकॉज ऑफ वेरी हार्ड ब्रशिंग, और हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश यूज करते हैं। बेटर टू यूज अ सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश, डू इट जेंटली, किसी का गुस्सा इसके ऊपर मत निकालिए अपने दांतों के ऊपर। आप राइट हैंडेड है तो राइट साइड पे पहले ब्रश करिए, लेफ्ट साइड पे मत करिए, ऑपोजिट साइड ज्यादा प्रेशर आएगा। तो इस साइड से स्टार्ट करिए और गम से ब्रश की तरफ करिए। 2 मिनट ही करिए, ज्यादा करने के कई लोगों को मैं सुनता हूँ कि सर हमारे येलो दांत है तो 15 मिनट ब्रश करते, जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे। आई नो। सो जैसे घर में बहुत सारा ऐसे कचरा जमा हो गया तो उसके लिए यू हैव टू कॉल द स्पेशलिस्ट। इट इज लाइक सेम, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाके वो क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। जोर जोर से ब्रश कसने से आपका टीथ ही खराब होगा। So when is the right time you can say that a person should visit a dentist or a maxillofacial surgeon in a year, 6 monthly or in a year twice? Yes, and so our books recommend that every 6 months a dentist visit is recommended. Yeah, so I also believe that, but कई लोगों का शेड्यूल वो अलाउ नहीं करता है, तो साल में एक बार तो कंपलसरी आपको डेंटिस्ट विजिट करना ही चाहिए। डेंटल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मैं जो आपको बताना चाहूंगा, डेंटल कैरीज, मतलब जो कैविटी होता है हमारा, इट्स द ओनली थिंग इन द बॉडी व्हिच कैन नॉट हील इटसेल्फ। अदरवाइज कहीं पे भी लगता है आप देखेंगे इवन फ्रैक्चर्स कैन हील इटसेल्फ। अग्रीड। या बट डेंटल कैरीज कैन नॉट हील इटसेल्फ। मतलब एक बार आपका दांत का सड़ा शुरू हुआ, उसने अंदर घर बना लिया कीड़े ने, तो वो अपने आप बाहर नहीं जाएगा, आपको डेंटिस्ट को पैसे देने ही पड़ेंगे। इसमें क्या है मैडम कि कैविटी वगैरह जो होता है इट प्रोग्रेसेस वेरी स्लोली। मतलब भगवान आपको कैविटी होने के बाद भी बहुत सारा समय देते हैं, आप उसको मान नहीं रहे हैं कि मुझे इसकी जरूरत है। और वो पेनफुल भी नहीं होता है। जो इनिशियल कैरीज होता है वो 2-3 साल तक इट इज नॉट पेनफुल। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो सड़ा निकाल के अंदर फिलिंग करते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड अफोर्डेबल प्रोसेस, एक सिटिंग का। नहीं करवाया, अगेन 2-3 साल बाद वो जाएगा रूट कैनाल के अंदर, फिर भी नहीं गए, 5-6 साल बाद वो जाएगा इम्प्लांट के अंदर। कॉस्ट आपका 10 टाइम्स बढ़ता जाएगा, आपका सिटिंग्स उसमें बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद है। उसमें आप फिर ब्लेम करेंगे डेंटिस्ट को कि डेंटिस्ट ज्यादा पैसे चार्ज करे। एक्चुअली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड मैंने सुना है, लाइक इवन मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर केरीज बढ़ जाती है तो मुंह में से बास भी आती है। सो दैट इज आल्सो वन सिग्नल ना फॉर यू टू गो टू अ डेंटिस्ट। यस, 2 रीजंस आर देयर बेसिकली उसमें। एक तो होता है कि बहुत सारे स्टेन्स हो गए, आपने कुछ खाया पिया, वहां पे कैलकुलस जमा हो गया, और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि वहां पे कैरीज कैविटी हो गया है, वहां पे खाना फंस रहा है। किसको पसंद आएगा खाना अंदर पूरे मुंह के अंदर पूरे दांत फंस रहे हैं? आपको पसंद नहीं आएगा, आपका दांत को भी पसंद नहीं आएगा। तो वो जो चीज होती है कि जहां पर खाना फंसा हुआ होता है, उससे वो कैविटी उस दांत में तो बढ़ती है, आसपास के दांत में भी फैलती है। सो बेटर टू विजिट योर डेंटिस्ट, सिंपल डेंटल कंसल्टेशन once a year. One good tip I want to share with you today for all your audience. आप एक बात का ध्यान रखेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगा। खाने के बाद गार्गलिंग करना,
है ना। बस आप सिर्फ खाने के बाद गार्गल करो, आपके डेंटल विजिट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सर गार्गल एक बार करना या 3 बार एटलीस्ट? 2-3 बार आप कर सकते हैं, और हर बार आप कुछ भी खाना खाए, इट्स अ वेरी सिंपल एंड फ्री थिंग, यू कैन डू एनीवेयर। ठीक है, पानी, नॉर्मल पानी लेके गार्गल कर दीजिए, बस हो गया आपका। सर थोड़ा रिसर्च किया था मैंने, Yes, तो मेरे ma'am. व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस है, Yes. तो आई वुड लाइक दैट कि आप उन पे भी रोशनी डालिए Yeah, थोड़ा। sure. What is better, implant or bridge for missing tooth? Yeah, as we already discussed, implant is always any day a better choice if it is possible. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इम्प्लांट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हड्डी गल गई है, ये सारी चीजें होती है, तो वहां पर ब्रिज बेटर है। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इम्प्लांट इज बेटर। Okay. Again, sir, what's MPDs and why it's called a new back pain like epidemic? ये सर मुझे भी जानना था। यस, जैसे बैक पेन हमें पता है कि अब तक वो आईटी फील्ड वाले लोग हमारे वहां पे अभी ज्यादा है, तो Yes. बैक पेन इज वेरी कॉमन, इट्स लाइक एन Yes, एपिडेमिक। yes. सेम चीज अभी हो गया है एमपीडीएस। एमपीडीएस इज मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम, उसका साइंटिफिक नाम है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे मसल्स हमें पेन करने लगते हैं। Okay. ऐसा एक साइलेंट एपिडेमिक है क्लेंचिंग, ब्रक्सिजन। ये जो टीथ क्लेंचिंग होता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली। और स्ट्रेस जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। तो स्ट्रेस की वजह से क्लेंचिंग होता है, क्लेंचिंग की वजह से एमपीडीएस होता है। एंड सर रात में आई थिंक सो सबसे ज्यादा क्लेंचिंग होता है, उसके लिए आई थिंक सो इवन मुझे भी मेरे हस्बैंड के लिए एक डेंटिस्ट ने ना नाइट गार्ड करके Yes. प्रिस्क्राइब किया था। ये जो स्ट्रेस है वो बहुत कॉमन हो गया है, तो Yes. उसकी वजह से एमपीडीएस के केसेस अभी बहुत बढ़, और जैसा हमने डिस्कस किया उसमें वैसा ही है, यू डोंट नो वेयर टू गो, आई एग्री। कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ये पेन तो सालों तक बेचारे सहन करते रहते कि मैं खाना नहीं खा पाते, इतना ज्यादा पेन होता रहता है। एक फीमेल पेशेंट आए थे, इतना ज्यादा पेन था, वो मतलब हार्डली शी वॉज इन हर 30s, और पेन में मतलब अनबेरेबल था उनके लिए, और आके बोले सर आपको जो करना है करो, बट मेरा ये पेन अच्छा करके दो। मैंने ऐसे कैजुअली पूछा, उनके हस्बैंड के साथ आए थे, कि मैम आपको कोई इश्यू है, स्ट्रेस है? शी वॉज लाइक नो कुछ नहीं है। देन मैंने फिर स्टाफ से कॉल करवाया कि मैम आप प्लीज नेक्स्ट टाइम हो सके तो अकेले आना, आपका ये स्प्लिंट लेने के लिए, नाइट गार्ड लेने के लिए। फिर आए, मैंने थोड़ा डिटेल हिस्ट्री हमने निकालने की कोशिश की। देन वी केम टू नो कि भाई उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस है, मतलब फैमिली रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है। देन आई रिफर द पेशेंट टू यू। सो दैट इज हाउ द थिंग्स गो ऑन, कि स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत सारे लोग वो ओपनली डिस्कस नहीं करते सर, नहीं। एंड दैट इज व्हाई योर रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Very important, sir, because confidentiality is prime motto out here, Right. and we do maintain that. And of course, thank you for sending that patient, and she's doing great. I can say that now. Moving on to next question, sir. Full mouth smile makeover, is it worth it? Yeah. So ये हमने बात की ना क्लेंचिंग, उसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही आना चाहिए कि क्लेंचिंग 20-30 साल से शुरू कर देते हैं, तो 50 साल के तक पूरे दांत उनके सारे घिस जाते हैं, एंड देन दे कम टू अस कि अभी मेरा कुछ करके दो। अभी मैं ऐसा दिखता हूँ, पहले नॉर्मल मस्त दिखता था, अभी मेरे दांत घिस के पूरे दिखते ही नहीं है। So the shape also changes ना, like वो पीछे ये पूरा lips वगैरह पूरा, everything changes। ये लिप्स अंदर चले जाते हैं, your face only becomes like you look much older in a very prime age. So 40-50 में ही आप 67 दिखने लगते हो। तो इस टाइम के ऊपर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि अभी कुछ हमें करके दो। At that time what we suggest is full mouth rehabilitation. तो उसमें क्या होता है, सारे दांतों का हम डिजिटल प्लानिंग, जैसे हमने डिजिटल की बात की, तो डिजिटल इज अ बोन, तो उसे डिजिटल पूरा हम प्लानिंग करते हैं, और एक जर्कोनिया मेटल फ्री क्राउन्स आते हैं, वीनियर्स आते हैं, बहुत सारे एडवांसेस आते हैं, सब एक बहुत मस्त स्माइल देके देते। तो पहले जो वो 10-20 years ओल्डर लगते थे, अब 10-20 years यंगर लगते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस हो जाए है ये 50-60 years के पेशेंट्स के लिए। आई नो सर, और इन बिटवीन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी ने अभी मतलब रिसेंटली शी लॉस्ट हर परमानेंट टीथ, और वो भी सेंट्रल इंसाइजर, मतलब बीच का जो दांत होता है ना, दैट, एंड कंप्लीटली आई आल्सो वाज लाइक टेकन अबैक बाय दैट इंसिडेंट। लेकिन बिकॉज ऑफ योर इंटरवेंस एंड इंटरफेरेंस, उसकी स्माइल मुझे वापस मिली। यस सो दैट इज इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चों को आप जैसे बोले बिकॉज ऑफ कैविटी, एंड सेकंड चीज होता है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। यंग एज में क्या, जैसे आपकी बेटी है, यंग है, अभी खेलने कूदने ये सब चीजें रहती है, तो ट्रॉमा की वजह से एक दूसरे भी चीज होती है। ट्रॉमा की वजह से क्या है, इट्स लाइक अ साइलेंट किलर, पहले कुछ नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे करके डैमेज करता है। तो जैसे डिस्कलर आपका टूथ कोई हो गया है, डिस्कलरेशन की वजह से नीचे पूरा एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है। सो वो एक डेंटल कंसल्टेशन उसके लिए भी जरूरत है कि ऐसा कुछ आपके अंदर फॉर्म नहीं हो रहा है, ऐसा जानने के लिए। So what's the one myth related to dental extraction you hate the most?
दांत निकालने से आंख चली जाती है। I agree. आज तक किसी की गई नहीं है, पर पता नहीं कैसे ये मिथ आ गया है कि बहुत सालों से लोग कहते हैं कि दांत निकाला आंख चली। ऐसा कभी आज तक मतलब कोई रिकॉर्डेड केस नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि दांत निकालने से आंखों को कोई भी डैमेज हुआ हो। सो ये मिथ में आई हेट दिस मिथ। Okay. What's the best innovation in your field account to you? टू थिंग्स आई वांट टू एम्फसाइज। फर्स्ट हमने जो बात की, एक तो अलाइनर्स की, और दूसरा जो है वो डिजिटल स्कैनर। बहुत सारे लोग जो पहले डेंटिस्ट के पास जाते थे ना, वो इसलिए कि ऐसे पूरे मुंह के डाल के पूरा ऊपर चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर इम्प्रेशंस के लिए। So, वो एक अभी चेंज हो गया है कि डिजिटल इम्प्रेशंस आने की वजह से, डिजिटल स्कैनर की मदद से हम ज्यादातर लोगों के अंदर वो इम्प्रेशंस जो होता है वो धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट होने लगा है। So, जितना हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं ये सारी चीजें हमारी कम होने लगे। सो दैट्स टू थिंग्स आई लाइक द मोस्ट। Okay. So with that sir, मुझे कई बार मतलब व्यूअर्स ने ये भी पूछा है कि फाउल स्मेल आना इज जनरली समटाइम्स दांत एकदम क्लीन है, सब कुछ क्लीन है, दांत वाइट है, फिर भी वो स्मेल क्यों आती है? उसके मैम दूसरे भी 2-3 चीजें होती है। एक तो डेंटल प्रॉब्लम्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज, पर उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो गया, जैसे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो गया, ये सारी दूसरी चीजें भी रहती है जिसकी वजह से ये फाउल स्मेलिंग का इश्यू रहता है। दैट्स व्हाई डेंटल विजिट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द रियल कॉज। फाउल स्मेल का एग्जैक्ट कॉज क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन क्या है? The one advice for new budding dentist. डेंटल फील्ड के बारे में एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन अभी हो गया है, स्पेशली अमंग द डेंटिस्ट itself, कि बहुत मारामारी है अभी। आई वुड से कौन से फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में अभी कंपटीशन है, बट डेंटिस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक लिप्स एंड बाउंड्स। जैसे हमने डिस्कस किया, पहले लोग ब्रेसेस भी नहीं कराते हैं, नाउ एवरी किड इज गेटिंग अलाइनर्स। सो अवेयरनेस डेंटिस्ट के अबाउट, डेंटिस्ट के रिलेटेड और डेंटल स्पेशलिटी के रिलेटेड बहुत ज्यादा बड़ी है। सो एंड आवर पॉपुलेशन 145 करोड़। सो कुछ सालों के पहले हम सेकंड नंबर पे थे, लेकिन अब अभी फर्स्ट आ गए। So we have a lot of people, frankly speaking. So कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए डेंटिस्ट्री को एक्सप्लोर करिए, अपना फेवरेट फील्ड चूज करिए एंड गो इनटू द प्रैक्टिस, कोई इश्यू नहीं आएगा। The biggest myth about your job? बिगेस्ट मिथ, मतलब बहुत सारे मिथ्स है ऐसे। अवेयरनेस प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एज अ फील्ड अभी अवेयरनेस कम है हमारा फील्ड का, नॉट जस्ट इन द जनरल पब्लिक बट ऑल्सो इन द डॉक्टर। सो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी नाम लेते हैं तो कई सारे पेशेंट्स भी घबरा जाते हैं कि ये क्या है भाई, कौन सा फील्ड आ गया, कौन सा डॉक्टर आ गया है, they don't know anything about it. So my basic liking is to create awareness among the public, and not just the public but amongst the medical specialties also. So कभी-कभी आपका comparison एक cosmetic surgeon से भी किया जाता है। Yes. Because I had idea that के maxillofacial surgeon cosmetic surgeon ही होते हैं। Yes. So maxillofacial, yeah, I agree with that. Maxillofacial surgery is a vast specialty. ओरल कैंसर भी आता है, हेयर ट्रांसप्लांट भी आता है, फेशियल ऐसे बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह भी सब आता है, बट ओवरलैपिंग होता है ना बहुत सारी। जैसे ये सारी फेशियल कॉस्मेटिक चीजें प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट भी करते हैं और मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा ओवरलैपिंग की वजह से भी अवेयरनेस में इश्यूज आते हैं, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मेडिकल स्पेशलिस्ट। इसका मुझे बताइए, जॉ सर्जरी का पेन लेवल ऑन 1 to 10 क्या होता है और कितना होता है? I would rate it 0. in 1 to 10. So again a myth broken कि जॉ सर्जरी का कोई पेन ही नहीं होता है। नहीं, पेन एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग किसी भी ट्रीटमेंट रिलेटेड नहीं होता है। जैसे पेन का मैं एक चीज बताना, जैसे कोई भी सर्जरी किया है, इट्स लाइक अ ट्रॉमा। जैसे आप गिर गए, लग गया, थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया, पेन हुआ, 2-4 दिन रहता है। तो यहाँ पर आप इंटेंशनल, जैसे अक्ल दंड निकल रहे हैं, तो वहां पर हम इंटेंशनल ट्रॉमा कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़े से मेडिकेशन हम 4-5 डेज के लिए देते हैं, तो उससे पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीजें भी कंट्रोल में। इट्स नॉट दैट पेनफुल, नो काइंड ऑफ सर्जरी इज दैट painful because everything is nowadays done under anesthesia, either local anesthesia or general anesthesia, so ये सारे issues नहीं होते। Coming to my next, and it is a very prominent asked question from my viewers, can AI replace you? It cannot ever. I'm so happy to be in a field that can never be replaced by AI because बहुत सारे पेशेंट्स, आपको पता होगा कि गूगल से अपने सिम्टम्स वगैरह देख के आते हैं कि भाई कई सारे ऐसे आते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, आप इतना इलाज कर दो, ऐसा बहुत सारी चीजें, बट गूगल गिव्स यू इंफॉर्मेशन, आई गिव यू डायरेक्शन। Agreed. Right?
गूगल से क्या होता है कि आप सिंपल गूगल सर्च करोगे हेडेक, तो उसमें हजारों चीजें वो आपको लिख के देगा, बट वो हेडेक आपके केस में क्यों है, एमपीडीएस है या माइग्रेन है या क्या है, वो मैं ही आपको बता सकता हूँ, वो गूगल या एआई आपको नहीं बता सकता है कभी भी। दूसरी चीज, मेरा जो स्पेशलिटी है पर्टिकुलरली वो है सर्जरी का। नो एआई कैन एवर रिप्लेस अ सर्जन, और मुझे ये बात कहने में बहुत आज खुशी हो रही है कि मैंने ये फील्ड चूज किया है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सर्जरी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। लाइक यू हैव मस्ट हैव सीन द रोबोट्स परफॉर्मिंग सर्जरी नाउअडेज, बट रोबोट के अंदर फीड करके कई सारी ऐसी चीजें होती है जो इंट्रा ऑपरेटिवली आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, स्पॉन्टेनियस ओनली अ ह्यूमन कैन टेक दैट डिसीजंस। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डॉक्टर rather than AI। दूसरा चीज जो होता है गूगल नॉलेज। गूगल में क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एज आई सेड कि आपको दे दी, बट उसमें से आपके केस में क्या है वो एक आपको डॉक्टर ही बता सकता है। जैसे मैं आपको भी पूछना चाहूंगा मैम कि आप अपने फील्ड के बारे में क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाउअडेज, इसलिए मैं आपको भी पूछना चाहूंगा कि गूगल के आने के बाद, एआई के आने के बाद आपके फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ा है, एंड हाउ डू यू डील विद दिस थिंग्स? ऑनेस्टली सर मैं बताऊं, आजकल रोज जो भी पेशेंट वॉक इन आता है तो वो मुझे बोलता है कि मेरे पास सीरी है, मेरे पास एलेक्सा है, और वो लोग भी हमें स्मूथ कामिंग सॉन्ग सुना के, एक फ्रेग्रेंस लगा के, वो लोग भी मुझे बहुत सारे सोल्यूशंस देते हैं। तो फिर मेरा उनको यही जवाब होता है, या फिर आई जस्ट सजेस्टिवली आस्क देम, क्या वो आपको छूता है, क्या वो आपके साथ हंसता है, क्या वो आपके साथ रोता है, क्या वो आपको टिश्यू देता है? सो इट इज ऑफ कोर्स, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, एंड एडवांस और होने वाली है, बिकॉज नाउ दैट 2025 इज एंडिंग एंड वी आर गोइंग टू बी इन 2026। सीखने को सर यही मिलता है कि अडॉप्शन हर चीज का है, लेकिन उस अडॉप्शन से क्या आपको फायदा हो रहा है? So of course sir, you and me cannot be replaced for sure. तो वो हमें I don't think so वो डरना भी नहीं चाहिए. But sir, that coming to my last point with you. Just a second, ma'am. I want to add one case here. Yes. Like one patient I had, and she had a small tongue ulcer. Yes. Like she came to me after around 1 month of having this ulcer, very small ulcer. बट शी वॉज इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट अल्सर, क्योंकि उन्होंने गूगल पे सर्च किया और सबसे पहली चीज आई कैंसर। शी वॉज इन सो मच ऑफ डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट। सो उनको पूरा काउंसिल पहले तो मैंने खुद किया कि आप ये टेंशन से बाहर आइए। सो दैट्स व्हाट गूगल कैन डू। गूगल गलत नहीं है, बट 100 में से हार्डली 1 को कैंसर होता है, बाकी 99 आर नॉन प्रॉब्लमेटिक अल्सर्स। तो उसमें भी आप लोगों को डरा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव योर डॉक्टर। कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है आप गूगल पे जाइए, बट मेडिकल फील्ड के अंदर गूगल के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करिए। That's my one advice to your viewers. Thank you so much, sir. With that, I would want to ask you one last question. It's regarding me. What's the role of a psychologist, and what do you think are they your best teammates? Wonderful question. Nowadays, as we discussed a lot about stress, teenagers and all those things, अभी के जो बच्चे हैं, जैसे पहले हमारे जमाने में बच्चों को जो इश्यूज थे कॉमन, वो इन सब लोगों को नहीं है। उनके इश्यूज अलग है। तो उनके इश्यूज जो है वो दैट डायरेक्टली लीड टू स्ट्रेस, जो हम बोलते हैं जेन जी, जेन अल्फा, उनके जो इश्यूज है डायरेक्टली लीड टू स्ट्रेस। और छोटी, दे आर लाइक वेरी प्रिविलेज चिल्ड्रन। तो आजकल के जो टीनेजर्स है उनको बहुत प्रिविलेज सिचुएशन मिला हुआ है ऑलरेडी। तो कुछ भी छोटी से छोटी चीज वो बेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से they get a lot of problems, dental problems, face related, muscle problems, TMJ, all those things. But the core issue in this is not here, it's here, and only you can heal that. So it's very important for me to have a psychologist, and I'm blessed to have a psychologist like you in my team. Thank you. So it's very important for us to have a psychologist in our team who can properly counsel them, hear their problems. That's the most important. ऑब्वियस के बहुत सारे बच्चे लोनली फील करते हैं, बहुत, क्योंकि आप जानते हैं कि सोसाइटी में बच्चे नहीं हैं, टीवी देखा करते हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज देखते रहते हैं पूरे दिन, सो पूरा लोनलीनेस आ जाता है। तो उनको चाहिए कि कोई उनकी बात सुने। अभी वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि उनका पूरा का पूरा इश्यू हम सुन के समझ के उसका सॉल्यूशन दे पाए, और वो हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं, दैट इज योर एक्सपर्टीज।
इसीलिए वी नीड साइकोलॉजिस्ट लाइक यू इन आवर टीम कि जहां पर ये सारे प्रॉब्लम्स का आप प्रॉपर सॉल्यूशन उन टीनेजर्स को आप दे पाए जिसकी वजह से वो ये सारे इश्यू ना फेस कर रहे। Sure. Thank you so much for being here today with me on Let's Talk Life and to the viewers that who are there today with me. तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपका सपोर्ट ही हमें हर एपिसोड के साथ और बेहतर बनाता है। हमारा पॉडकास्ट का मेन मकसद यही है कि आप गूगल पर सिम्टम सर्च करके डरो नहीं, बल्कि हम यहाँ अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट्स फील्ड्स के डॉक्टर्स को लेके आएंगे ताकि आप सही डायरेक्शंस और रियल गाइडेंस मिल सके। आप बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको कौन सा या फिर कौन से मेडिकल एक्सपर्ट्स या स्पेशलिटी के डॉक्टर्स चाहिए, और अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक सवाल हो जो आप चाहते हो हम उनसे पूछे तो वो भी हमें लिखकर जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नया एक्सपर्ट, एक नए जज्बे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और सीखते रहो, समझते रहो और हेल्दी रहो।